Good morning to all of you. My dear children, कल हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे. We completed 6 questions of lesson number 1. Today I am going to start 7th question. The question is, why did Bob's hand begin to tremble as he almost finished reading the note? जो नोट उसको भेजा गया था वो जब पढ़ा उसने तो उसके जो हाथ थे वो कांपना क्यों शुरू कर दिए, ये प्रश्न है और इसका उत्तर लिखिए. The tall man handed over a note to Bob. Full stop. The Bob unfolded the note. Full stop. His hands were steady when he began to read. Full stop. But Prantu, it trembled a little by the time he had finished, reading the note. Full stop. This had happened because of the shock. Full stop. He came to know that the policeman to whom he met first time in front of darkened hardware store, was his dearest friend Jimmy Well. Full stop. He was surprised to know that being his best friend Jimmy did not arrest him. Full stop. Feeling it as a shameful matter, his hands began to tremble. तो ये आंसर था, क्योंकि उसने सोचा ये चिट मेरे लिए बहुत अच्छी है, कोई मैसेज आया होगा मेरे फ्रेंड का, तब तो उसके हाथ बिल्कुल सही थे, लेकिन जब उसने पढ़ा और ख़त्म किया तो उस नोट्स को पढ़ करके चिट के अंदर यहाँ लिख रखा था कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सका. आई कुड नॉट अरेस्ट यू बीइंग फ्रेंड, सो आई डिटेल्ड समवन एल्स टू अरेस्ट यू. तो दिस वाज द कॉज. उसको ये बड़ा महसूस हुआ, ही फेल्ट बैडली, कि एक बेस्ट फ्रेंड मेरे को मिलने आया था, बट आई फाउंड क्रिमिनल. I was a criminal and thereafter he could not arrest me and he was my best chum in the world. So this was the matter, that's why his hands started trembling. तो ये हाथ तभी कांपना शुरू हो गए थे जब उसको पता लग गया कि ये चिट मेरे दोस्त की है और वो मुझे अरेस्ट करने आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टिक है, आपने कर लेना है, बुक के अंदर ही कर सकते हो. Jimmy did not arrest his friend because, take the correct answer. इसको टिक करना है आपने. तो इन सारे जो वहाँ पर 3 मैटर दिए हैं उनमें से एक टिक कीजिए और वो मैं बता रहा हूँ कौन सा टिक करना है. He could not bring himself to arrest his friend. He could not bring himself to arrest his friend. Stop. ये आपने टिक करना है, ये बुक के अंदर आपको दिया है. 9th क्वेश्चन, व्हाई इज दिस स्टोरी टाइटल आफ्टर 20 years? भाई स्टोरी का टाइटल जो है वो 20 years क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन है और इनका आंसर लिखिए आप. द स्टोरी इज टाइटल्ड आफ्टर 20 years. इन्वर्टेड कॉमा लिखना है इसको. द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी is to apprise the readers that a period of 20 years can convert a good man into a bad man and from poor to a rich by unfair means. Full stop. In this story, the second friend Jimmy Well prepared with his 5 fingers
and got a respectable job in the police department. Full stop. The story is furnished with two friends' appointment, which has 20 years period of accumulate riches and prove identity of each other. So the title inverted comma में लिखिए after 20 years is the main component in the lesson. Thus, comma, we justify it a suitable title for story. 10th question. If you were in Jimmy's shoes, what would have been the best thing to do from the following points of views? Your career as a policeman. भाई यदि तुम अगर पुलिस में होते, if you were in the police, तो आपने कैसा किया होता? ये पीछे आपने अपने कैसे कैसे कैरेक्टर जो है टेबल करते, आप कैसे पेश करते, कैसे प्रेजेंट करते? तो ये पहला इसने लिखा है, if you were Jimmy and I would perform like a police officer and discharge my duty honestly. तो पहले का इसने जवाब दिया है, कैरियर के अंदर पुलिसमैन होता तो बोलता इफ आई वर जिम्मी आई वुड परफॉर्म लाइक ए पुलिस ऑफिसर एंड डिस्चार्ज माई ड्यूटी हॉनेस्टली. बड़े ईमानदारी से ड्यूटी देता मैं अपनी. बी है इसका, योर फ्रेंडशिप विद बॉब. दोस्ती होती तो कैसे निभाते? फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. जवाब है इसका, फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कामा द ड्यूटी इज फॉर अबव देन द फ्रेंडशिप and relations. Full stop. So, comma, we must be faithful to our job and so we are. ये इसका जवाब है और ऐसा हम हैं. अब तीसरा है योर ओन कंसाइंस. आपकी अपनी जमीर क्या कहती है, अंदर से क्या करते आप? तो जवाब है सी का, मैन हु इज ऑफ प्रिंसिपल. फुल स्टॉप. प्रिंसिपल्स PALS नहीं लिखने का है, PLES. प्रिंसिपल्स. फुल स्टॉप. हिज कंसाइंसनेस डज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एट हिज फ्री विल या ऑन विल. अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता कोई. सो ही विल ऑलवेज थिंक बिफोर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी फेथफुली. थस we also expect the same of our soul या same soul in us. हमारे अंदर भी वही रूह है, soul SOUL, वही सोल से हम भी काम करेंगे. We will also do according to our soul. तो ये आपने इसका सी का आंसर है. अब कानून के हिसाब से पूछ रहा है डी में, बाय लॉ कैसा करोगे? तो आंसर है बिसाइड्स कामा वी मस्ट बी केयरफुल टू अमिट अमिट कामा अवर लिबर्टीज कामा विदाउट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू अदर्स. फुल स्टॉप. दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ वी डू अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड थस वी विल अवॉइड the other evils from us. यदि हम अपनी सहूलियत को पाना चाहते हैं तो कानून के दायरे में रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए, तभी हम अपनी भी सहूलियत सहन जो है अवेल कर सकते हैं और दूसरों को भी पीसफुली लिविंग की परमिट करते हैं. तो ये है. अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके ये खत्म हो गए हैं. रेफरेंस टू कंटेस्ट है अभी जो पैसेज पढ़ कर के क्वेश्चन आंसर देने हैं. तो अभी